Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri, and before beginning this video, I want to thank you all for showering so much of love on Leena Ma'am's makeup tutorial makeup look. I know you all loved it because I gave you the target of 500 likes and you guys just smashed it, and I'm so overwhelmed. I'm so happy. Like, I just can't thank you enough. You guys made my day, and as promised, I'm back with another makeup tutorial for you all, and this time the makeup artist is Parul Garg. Drum rolls. We all love Parul ma'am, don't you? Like उनके Instagram की reach numbers, oh my god, and same applies to YouTube. सब उनको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं. Today I'll be recreating this makeup look. I have inserted the picture right here. ये इतना प्यारा सा makeup look है, and this is so different from the red traditional bridal makeup look. Like आजकल लोग बहुत ज़्यादा change कर रहे हैं. They're switching to pastels or different colors, and blue is one of them. This makeup look is looking so beautiful, and as Parul ma'am says, this is such an appropriate Mahi Way makeup look. Mahi Way, तेरे माथे झूमर दमके तेरे पैरों का ये वे माही वे, यही वाला. आज मैं हूबहू यही वाला मेकअप लुक आपके लिए रिक्रिएट करूंगी, एंड आई होप आप सबको अच्छा लगेगा. गाइस, बिफोर वाचिंग दिस वीडियो, स्मैश द लाइक बटन बिकॉज इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स. यस गाइस, आई जस्ट कांट कीप काम, एंड आप जैसे जैसे मुझे प्यार करोगे ना, मैं भी उतना ही मोटिवेट होंगी नए नए मेकअप आर्टिस्ट के, आपके रिक्वेस्टेड मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप लुक्स लेके आने वाली हूँ. तो दिस टाइम द लाइक टारगेट इज 1000 लाइक्स. लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल Gauri Styles. Hit that bell notification so you guys don't miss out on any updates from my side. So without wasting any further ado, let's get started. गाइस, ये वाला मेकअप लुक दोबारा से देखो कितना ज्यादा प्रिटी है, एंड यू नो व्हाट, इट गॉट 16 मिलियन व्यूज बोथ ऑन YouTube एज वेल एज ऑन Instagram, एंड आई आल्सो लाइक्ड इट सो मच, एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट रिक्रिएट दिस मेकअप लुक ओनली. रेड से हटके है, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड आजकल की ब्राइड्स ऐसे कलर भी बहुत ज्यादा पिक कर रही हैं. एंड अगर आपके घर में भी कोई फंक्शन आने वाले जिसमें ब्लू कलर का आउटफिट वेयर करने वाले हो, देन डू ट्राई दिस मेकअप लुक, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन योर रिक्रिएशन. आई वुड लव टू शेयर ऑल ऑफ योर वर्क ऑन माय इंस्टा पेज. So having said that, let's begin with the makeup tutorial. First, I'll be prepping and priming my face with this Embroilus moisturizer. Guys, Parul ma'am also uses this moisturizer. She swears by it, and she also uses very reasonable Biotic moisturizer, which is called as Biotic Morning Nectar. But I know not many people are comfortable using that moisturizer because on sensitive skin type people, the skin gets flared up. I've heard such reviews about that moisturizer, but personally, I'm a fan of that moisturizer as well. I just love it. थोड़ी थोड़ी रेडनेस दे देता है, मेरे लिए तो एक्सेलेंट काम करता है, बट मैं सबके लिए दिखा रही हूँ ताकि आप सब, ये वाला मॉइस्चराइजर तो किसी को भी फ्लेयरिंग अप नहीं देता, कुछ नहीं देता. तो इट गोज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ऑल स्किन टोन. आप इसको जरूर इस्तेमाल करो, एंड इट हैज द फीचर्स ऑफ बोथ द मॉइस्चराइजर एज वेल एज द प्राइमर. एंड इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द फुल साइज, यू कैन ट्राई द मिनी साइज. एक बार मिनी साइज लोगे ना, जब वो खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली आप फुल साइज ही लोगे, क्योंकि मॉइस्चराइजर जेन्युइनली बहुत अच्छा है. दैट इज व्हाई एवरी मेकअप आर्टिस्ट स्वेयर्स बाय दिस मॉइस्चराइजर. Okay, so we have prepped our skin generously. For face primer, she uses Smashbox का Photo Finish Primer, but I'm skipping my primer today because मुझे जरूरत ही नहीं लग रही है. Embroilus moisturizer से दोनों इफेक्ट मिल जाते हैं, moisturizer as well as primer. So straight away, I'll be correcting my under eyes. For that, I'll use a darker shade of concealer, and that is from the brand Too Faced. This one is in the shade Warm Sand. Parul ma'am uses Too Faced के concealers, Tarte के concealers, and even Makeup Forever 52. तो शी स्वेयर्स बाय ऑल ऑफ दीज कंसीलर्स. वो कोई भी एक ब्रांड को स्टिक नहीं करती है. शी यूजेस मल्टीपल ब्रांड्स जो सारे अच्छे हैं, मार्केट में रिनाउंड ब्रांड्स हैं. ओनली दोज कंसीलर शी यूजेस ऑन हर क्लाइंट्स. गाइस, जरूरी नहीं है कि आपके अंडर आइज डार्कनेस हो तो आप ऑरेंज ही लगाओगे या कोई करेक्टर ही लगाओगे. यू कैन यूज अ डार्कर शेड ऑफ कंसीलर एज वेल, बट मेक श्योर इट्स 2 to 3 टोन्स डार्कर देन योर स्किन टोन. एंड टू फेस के अगर आपको 3 मस्ट हैव कंसीलर चाहिए ना, देन यू कैन हैव वार्म सैंड, Golden Beige as well as Swan. Warm Sand for deeper skin tones, Golden Beige for medium skin tones, and Swan for lighter skin tones. Guys, I've used a Damp Beauty blender, and this one is from the brand Prosh. Parul ma'am also uses Prosh Forever 52. इनके ही ब्लेंडर्स वो यूज करती हैं, एंड इनके ब्लेंडर्स ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छे हैं. अगर आप ये वाले ब्लेंडर्स यूज करोगे ना, तो आपको कोई भी हाई एंड ब्लेंडर लेने की जरूरत नहीं है. हाई एंड तो आप सिर्फ एक ही ब्रांड का आता है, दी ब्यूटी ब्लेंडर ओरिजिनल, विच रिटेल्स इन Sephora स्टोर, एंड वो लेने की तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लेंडर एक्जैक्टली सेम यूज करते हैं. एंड वन हाइजीन टिप विच आई वांट टू गिव टू यू गाइस इज कि जब भी आप अपना ब्लेंडर यूज करो ना, लाइक ईच एंड एवरी मेकअप, जस्ट मेक श्योर टू वॉश इट ऑफ एंड लेट इट एयर ड्राई.
ऐसा भी नहीं करना कि आपने एक मेकअप दोपहर में कर लिया, आपको रात को भी एक मेकअप करना, आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करो। नो, इट्स अ नो नो, डिफरेंट ब्लेंडर यूज करो। हर मेकअप के लिए एक ब्लेंडर रखो, उसे यूज करो, एंड आपके ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल खराब नहीं होंगे, बिल्कुल उनमें मोल्ड्स फंगस नहीं लगेंगे। दिस इज माई प्रो टिप, एंड मैं इससे ही अपने सारे ब्यूटी ब्लेंडर यूज करी हूँ, और मेरे सारे ब्यूटी ब्लेंडर आर एज गुड एज न्यू। आपने देखा होगा जब मैंने इस ब्लेंडर को जस्ट डैप करना स्टार्ट करा था, ये बिल्कुल ही साफ सुथरा था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था इट्स माई ओल्ड ब्लेंडर, क्योंकि मैं हर मेकअप के बाद अपना ब्यूटी ब्लेंडर धोती हूँ। ओके, सो इट हैज कंसील्ड माई डार्कनेस, नाउ इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन। And Parul ma'am uses Huda Beauty का foundation. She also uses Charlotte Tilbury and NARS. But आज मैं दिखाऊंगी Huda Beauty का foundation, and this one is in the shade 300N Latte. गाइस, अगर आपको लगता है कि हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन से आप काम नहीं कर पाते हो बिकॉज इट्स वेरी ड्राइंग ऑन योर फेस, देन मेक श्योर टू प्रेप एंड प्राइम योर स्किन वेल। उसके लिए एक हेवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर लगाओ लाइक एम्ब्रॉयलिस। पहला तो ये है, एंड पहले ना वो चलता था लाइक बैक इन द डेज, बीच में ये भी बहुत फेमस हुआ था कि अपने मैट फाउंडेशन में आप अपना फेशियल ऑयल मिक्स करो देन लगाओ। वो ग्लाइड तो बहुत स्मूथली होता है, बट उसके बाद वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। तो नॉट नाउ मेनी मेकअप आर्टिस्ट डोंट यूज फेशियल ऑयल ऑन देयर क्लाइंट्स फेस, एंड पारुल मैम ऑल्सो डजंट यूज एनी फेशियल ऑयल। तो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर ही लगाओ, करेक्शन करो, एंड देन ये वाला जब आपको फाउंडेशन लगाना है ना, तो आई टेल यू अ ट्रिक। इसको ना पार्ट ऑफ योर फेस में वर्क करो, लाइक पहले हाफ पार्ट में लगा लो एंड देन हाफ पार्ट में लगा लो। अगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक बार में लगाना है, तो उसके लिए भी दिखाती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन ब्रश। ये बहुत ही ज्यादा पतला फाउंडेशन ब्रश है, एंड इससे ना बहुत इवनली लगा सकते हो ऐसे। इससे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लगता आपका फाउंडेशन, बस एक ही लेयर लगती है, कुछ भी एक्सेस नहीं लगता है। उसके बाद जब आप ब्लेंड करते हो ना, तो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है। तो आई टोल्ड यू टू टेक्निक्स, वन इज कि हाफ पार्ट ऑफ योर फेस में फाउंडेशन लगाओ एंड देन ब्लेंड इट आउट, or you can use this type of foundation brush to blend in your foundation on your face first and then use a damp beauty blender. देखो, इससे इतना ज्यादा कम फाउंडेशन पिक होता है ना, मैंने सिर्फ 2 पंप निकाला था एंड आई गेस 1 पंप से ही काम हो जाता। तो अगर आपको अपनी फाउंडेशन बचाना है, या आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा लेती हूँ और उसकी वजह से मेरे फेस में भी बहुत ज्यादा फाउंडेशन लग जाता है, देन ये वाला ब्रश तो आप डेफिनेटली ट्राई करो। मैं इसका लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, आपको मेकअप ब्रश की रिकमेंडेशन है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी है, यू कैन चेक देम आउट टू। बट इफ स्टिल you want any product review or any recommendation, then you can comment down below. I'll be using the same beauty blender एंड इसी में बहुत अच्छे से डैप डैप करके लगा लूंगी। और ऐसा नहीं है कि ये फाउंडेशन आप विंटर्स में यूज नहीं कर सकते, इसे भी आप विंटर्स में यूज कर सकते हो। बस दोनों ट्रिक्स का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है, एंड फिर तो आप इस फाउंडेशन को ना किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। लाइक ये ना बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा बोला जाता है कि आप ये वाला फाउंडेशन इस टाइम पे यूज नहीं कर सकते। लाइक ट्रायरन सुप्रा की भी जो बात थी, सब बोलते हैं कि आप उसे सिर्फ विंटर्स में यूज करो क्योंकि समर्स के लिए बहुत ज्यादा ऑयली है। बट अभी तो बिल्कुल पीक समर्स ही है, मैंने पूरा मेकअप उसके साथ करके दिखाया एंड इट वाज ट्रांसफर प्रूफ, क्रैक प्रूफ, कहीं से मेरा मेकअप टच से मस नहीं होगा। गाइस, टेक्निक्स मैटर अ लॉट, एंड इफ यू आल्सो वांट टू लर्न प्रोफेशनल मेकअप और सेल्फ मेकअप, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। मैं सेल्फ मेकअप ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, एंड आपको अगर आप मेरी क्लासेस में इनरोल करोगे तो पूरा मेकअप अच्छे से सीखने में आ जाएगा। इस वाले फाउंडेशन ब्रश के मल्टीपल फायदे हैं। एक तो बहुत इवन लेयर लगती है जिससे आपका फेस केकी भी नहीं लगता है, प्लस आपकी फाउंडेशन की बचत भी हो जाती है। इजंट दैट अमेजिंग? एंड अगर आप बिगनर हो देन तो आपको ये वाला फाउंडेशन ब्रश बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। गाइस, अपने कॉर्नर्स ऑफ दी नोज को बहुत अच्छे से ब्लेंड करा करो। यहाँ पे ना फाउंडेशन छुप के बैठ जाता है, आपको लगता है ब्लेंड हो गया है, बट नहीं होता है। एंड जब आप पूरी फेस की ब्लेंडिंग कर लो ना, और आप कहीं बाहर जा रहे हो, अभी तो मैं सिर्फ आपको ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ, दैट इज व्हाई आई एम नॉट अप्लाइंग द फाउंडेशन ऑन माय नेक एज वेल एज ऑन माय ईयर्स। बट मैं आपको एक ट्रिक भी बता रही हूँ कि जब आपकी फाउंडेशन की आप पूरी ब्लेंडिंग कर लो ना, तो सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अपने ईयर्स में भी एक बार डैप डैप कर लो, ताकि आपकी ईयर्स भी इवन लगे एज योर फेस। गाइस, इस वाली आप पिक्चर में देख रहे हो कि मॉडल का फेस बिल्कुल स्नैश लग रहा है। पारुल मैम भी कॉन्टोरिंग करती है, फॉर दैट शी यूजेस फेंटी की कॉन्टोर स्टिक। फेंटी की कॉन्टोर स्टिक तो आपको हर मेकअप आर्टिस्ट के पास मिल जाएगी, हर मेकअप आर्टिस्ट इसे यूज करता है बिकॉज दे आर एक्चुअली गुड। ये बहुत अच्छी क्यों है? एक तो इनका कलर बहुत परफेक्ट है, दिस वन इज इन द शेड एस्प्रेसो, एंड ये ना बहुत अच्छे से शैडोज कास्ट करते हैं, आपके फेस में एक चिजल इफेक्ट देता है। एंड दूसरी बात ये कि बहुत इजी ब्लेंड हो जाता है। गाइस, मैंने वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल भी बनाया है यूजिंग फेंटी ब्यूटी प्रोडक्ट, एंड वो वाला मेकअप ट्यूटोरियल तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो के बाद वो जरूर देख लेना, लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस, स्वीट, ब्यूटीफुल, गेट सेक्सी मेकअप ट्यूटोरियल, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। चलो, मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ, बट इफ यू आर अ बिगनर और इफ यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, देन मेक श्योर टू यूज 2 different beauty blenders, one for the darker shades and one for the lighter shades.
Guys, also Parul ma'am contours the nose as well. मैं नहीं करती हूँ liquid contour because my nose is super oily, but आज हम मेकअप वीडियो कर रहे हैं बिल्कुल पारुल मैम की तरह, तो हम of course nose contour भी करेंगे. We can't ignore that. तो मैंने लगा लिया है nose में भी same contour stick from Fenty Beauty. पारुल मैम के मेकअप में आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि उनके मेकअप में ना बहुत ज्यादा सटलनेस रहती है. सटलनेस एज इन दी सेंस कि आपको ओवर कॉन्टोर नहीं दिखेगा, ओवर ब्लशी नहीं दिखेगा, ओवर हाईलाइट नहीं दिखेगा. ये जो तीन चीजें हैं ना जो आजकल मेकअप में बहुत ज्यादा चल रही है, ओवर चिजलनेस, बहुत ज्यादा ब्लश, ब्लश पगलू, ब्लश ब्लाइंडनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके ट्यूटोरियल में. एंड हाईलाइटिंग भी बहुत सटल होगी. बस एक चीज जो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होगी या बहुत ज्यादा ओवर द टॉप होगी इस आई मेकअप, वो अब भी कट क्रीज करती है. एंड कट क्रीज इज द मोस्ट hardest form of eye makeup, and nowadays many makeup artists don't do that. Not that कि वो करना नहीं चाहते, मेहनत बचाना चाहते हैं, it's just that कि it's little outdated nowadays. I don't know why, but I still love to do my cut crease, and आज हम cut crease वाला eye makeup look ही करेंगे. For highlighting, I will be using the same Too Faced concealer. This one is in the shade Swan. एंड हाईलाइटिंग भी हम बहुत ज्यादा सटल करेंगे, कुछ भी ओवर द टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि पारुल मैम का मेकअप लुक हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. ओके, दिस मच इज गुड टू गो. लाइट है लाइटिंग करेंगे, इतना भी बहुत ज्यादा लाइट नहीं होता, बट हाँ मीडियम लेवल का लाइट है ये. सेम ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करूंगी. मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर ओवर सैचुरेट हो जाता है किसी भी मेकअप प्रोडक्ट से, देन जस्ट यूज ड्राई टिश्यू. बस उसको ऐसे ऐसे आपको रब करना है ताकि एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाए. मेरा ये कॉन्टूर का प्रोडक्ट निकल गया है. एंड देन मैं ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करूंगी ताकि एक प्रोडक्ट दूसरे से ना मर्ज हो जाए. गाइस, मुझे कमेंट में बताओ कि किस किसने पारुल मैम की वाली रील देखी है जो मेकअप लुक आज मैं रिक्रिएट कर रही हूँ, एंड कितने लोगों को ये वाले लुक पसंद में आया है. आई एम श्योर बहुत लोगों को आया होगा, बहुत लोगों ने देखी भी होगी. 16 मिलियन व्यूज ऐसे थोड़ी हो जाते हैं. पारुल मैम के मेकअप लुक में ना आईब्रोज एंड आईज बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड रहती है, एंड रेस्ट ऑफ द मेकअप लाइक फेस मेकअप सटल कैटेगरी में ही होता है. कुछ कुछ भी ओवर द टॉप नहीं होता. ऑफ कोर्स ब्राइडल बेस वगैरह तो हैवी होता है यार, वो तो आप कहीं से भी मेकअप कराओगे ना, हर जगह का ब्राइडल बेस हैवी होता है, बिकॉज योर मेकअप हैज टू सर्वाइव फॉर गुड 7 to 8 hours और इवन 10 to 12 hours. मेरे टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी, माई मेकअप सर्वाइव फॉर गुड आई गेस 12 hours. यस, फॉर गुड 12 hours. इतना तो हो ही जाता है क्योंकि आप तब से रेडी होके बैठते हो, देन यू हैव टू गो फॉर योर फोटो शूट, एंड उसके बाद कितने देर में तो ब्राइड की एंट्री होता है. ओ माय गॉड, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट टॉपिक. इतने टाइम बाद तो ब्राइड की एंट्री होती है, देन जयमाल, देन फेरे एंड ऑल. फिर रात भर का पूरा जो रीति रिवाज रस्में होती हैं, उसके बाद सुबह की विदाई होती है. आराम से 12 घंटे हो जाते हैं. एंड देन जब आप अपने ससुराल में आते हो, देन वहाँ पे भी इतने सारे गेम्स रस्में होती हैं, एंड कभी कभी तो आपको मंदिर भी जाना होता है आफ्टर यू आपकी विदाई एंड ऑल. तो बहुत टाइम तक आपके मेकअप को सर्वाइव करना होता है, इसलिए ही एक हैवी मेकअप बेस बनाया जाता है ताकि वो इतने टाइम को सर्वाइव कर पाए. क्योंकि मेकअप भी ना कुछ टाइम बाद रब ऑफ होने ही लगता है. फ्रिक्शन होती है, जैसे आप बोलते हो, हंसते हो, खाते हो, एंड कभी कभी आपका हाथ भी लग जाता है. कभी कभी कोई आके पैर से गुगली वुगली भी कर देता है. बहुत सारी चीजें होती रहती है. डांस करते हो, पसीने आते हैं, इधर से उधर मूव करते हो, तो मेकअप रब ऑफ होता है. इसलिए थोड़ा हैवी बेस बनाया जाता है ताकि वो उन सबको सर्वाइव कर पाए. एंड हैवी मेकअप बेस भी ना एफर्टलेसली बनाना सबके बस की बात नहीं होती है. आज भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत केकी मेकअप भी कर देते हैं, एंड वी ऑल नो सच मेकअप आर्टिस्ट, डोंट वी. अब स्टार्ट करते हैं हम ब्लश लगाने से. For blusher, I'll be using She Glam का liquid blusher. This one is in the shade Love Cake. ये बहुत प्यारा सा पिंक ब्लशर है. I just love this blusher. पारुल मैम uses Forever 52 के liquid blusher और NARS के liquid blusher, Prosh के liquid blusher, multiple brands का. Like ऐसा नहीं है कि वो एक का यूज करेंगी. Multiple जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में, वो उन्हीं सबके liquid blusher यूज करती हैं. आज मैं मल्टीपल ब्लशर भी यूज नहीं कर रही हूँ, एंड ओवर पिगमेंटेशन भी नहीं कर रही हूँ अपने ब्लशर की, क्योंकि पाउडर सेटिंग के बाद भी सब कुछ बहुत सटल लगे, जस्ट द वे पारुल मैम डज इट. गाइस, देख रहे हो कि मैंने मैट फाउंडेशन लगाया है. कंसीलर्स आर ऑल्सो मैट एंड स्टिल माई फेस इज लुकिंग ड्यूई. ये होता है करेक्ट मेकअप टेक्निक्स का कमाल. इट्स टाइम टू पाउडर सेट. लूज पाउडर के लिए पारुल मैम यूजेस लॉरा मर्सियर और आर ग्लास का लूज पाउडर, और इवन शनेल. मैं लॉरा मर्सियर यूज कर रही हूँ. दिस वन इज इन द शेड ट्रांसलूसेंट.
आपको लूज पाउडर लगाने की टेक्निक भी बता देती हूँ। अपना पिज्जा पफ लो एंड देन एक्सेस अपने पाम्स में निकाल दो। बस इसमें एक लाइट सी लेयर ही होनी चाहिए पाउडर की, ताकि कोई भी क्रीजेस ना पड़े। एक बार ऐसे पाउडर सेट कर दो एंड इफ यू वांट टू बेक योर फेस देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई एक्स्ट्रा लूज पाउडर, बट अभी आपको इतना सा ही लगा के इसको सेट करना है, अदरवाइज इट वुड फॉर्म क्रीजेस। गाइस पूरा फेस आपको सेट करना है लूज पाउडर से। लूज पाउडर सेटिंग में ना बिल्कुल भी कंजूसी मत करा करो। अगर आप अपना फेस पाउडर सेट नहीं करोगे ना, देन कितना भी अच्छा मेकअप कर लो वो इधर उधर ट्रांसफर होगा। कितना भी कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर प्रूफ, स्मच प्रूफ, बड़े बड़े क्लेम्स ये वो कर ले, बट नहीं, उन क्लेम्स में नहीं जाना है। नॉट दैट कि वो ट्रांसफर प्रूफ स्मच प्रूफ नहीं होते, होते हैं, बट पाउडर सेटिंग इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट इन द लॉन्जिटिविटी ऑफ योर मेकअप। और पारुल मैम का मेकअप स्टाइल आपने देखा ही होगा, मैट फेस ही रहता है उनका हमेशा। दिस लॉरा मर्सी लूज पाउडर इज ऑल्सो वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है एंड ये बिल्कुल मैट सेटिंग पाउडर है। इसके बहुत सारे वेरिएंट भी आते हैं, लाइक द ब्लर वेरिएंट एंड द ड्यूई वेरिएंट, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, बट मेरे पास ओरिजिनल ही है एंड द कलर इज ऑल्सो ट्रांसलूसेंट एंड इट्स अ वेरी मैट लूज पाउडर, बट इट्स अ वेरी गुड लूज पाउडर एज वेल। ये बहुत अच्छे से आपके फेस को ना सेट कर देता है बिल्कुल अच्छे से, कि आपका मेकअप कहीं भी मूव ना हो। For powder contouring, मैम uses Anastasia Beverly Hills powder contour kit और Kat Von D की powder contour kit। आज मैं Anastasia की powder contour kit यूज करूंगी। इसमें 3 contour shades आते हैं, एक आपका highlighter shade आता है एंड 2 आपके powder shades आते हैं। This one is yellow and this one is pink in undertone। आज मैं इन तीनों ही shades को mix and match करके ही अपने face की contouring करूंगी। कॉन्टोरिंग भी हम बहुत लाइट करेंगे, बिल्कुल भी ओवर द टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि मैम भी बहुत ज्यादा लाइट कॉन्टोरिंग करती हैं। जब जो भी प्रोडक्ट पिक करते हो ना, उसे मल्टीपल टाइम्स में पिक किया करो। ऐसा मत किया करो कि एक ही साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लेके एक ही बार में लगा दो। आई नो कभी कभी ये बहुत ज्यादा एक्सॉस्टिंग हो जाता है, बार बार प्रोडक्ट पिक करना एंड देन लगाना, फिर पिक करना, फिर लगाना। किसी को भी लगेगा एक बार में लगा लो ना, ये क्या है बार बार करना, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्ट पिक करके लगाना ही होता है एंड हर बार पिक करने के बाद डस्ट ऑफ भी करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज बिल्कुल ना ब्लॉच ऑफ प्रोडक्ट लग जाएगा एंड उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग भी नहीं होगी एंड मेकअप में ना इतनी बड़ा ब्लंडर हो जाएगा कि वो फिर करेक्ट भी नहीं हो पाएगा। तभी आप देखते हो ना किसी किसी का मेकअप कितना सीमलेस, कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो टेक्निक्स बहुत ज्यादा बेटर करती है एंड आपको हर टिप्स बताती हूँ, हर टेक्निक्स बताती हूँ, तो इस बात पे एक लाइक तो मेरा बनता ही है। इतना टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सारी टेक्निक्स कोई भी मेकअप आर्टिस्ट या कोई भी एजुकेटर नहीं बताता इतना ओपनली यूट्यूब में आके, बट आई टेल यू बिकॉज आई लव यू सो मच एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप सब प्रोफेशनल मेकअप कर पाओ। एंड इफ यू ऑल्सो विश टू एनरोल इन माई प्रोफेशनल एज वेल एज सेल्फ मेकअप क्लास, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। फॉर नोज कॉन्टूरिंग आई वुड बी यूजिंग अ स्मॉल आई शैडो ब्रश। नोज कॉन्टोरिंग ना, मेक श्योर टू टेक इट ऑल द वे टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर ब्राउज। इससे ना आपकी कॉन्टोरिंग बहुत ज्यादा सीमलेस लगती है, प्लस बहुत ज्यादा कनेक्टेड लगती है। ऐसा नहीं लगता कि 2 लाइंस कहीं से भी स्टार्ट होकर कहीं भी खत्म हो गई, बिल्कुल एक कनेक्शन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड स्टिल इफ यू फील यू हैव मेस्ड योर कॉन्टोर लाइंस, देन कोई कॉम्पैक्ट पाउडर लो। अगर आपके पास इस टाइप का पैलेट है तो इनके ही ये वाले पाउडर्स ले लो एंड देन जस्ट क्लीन योर कॉन्टोर लाइंस। इससे ऐसा नहीं होगा कि जो आपने कंट्रोल किया उसकी इफेक्ट खत्म हो जाएगा, सब नहीं होता है। बस आपको डस्ट करना है, थोड़ा प्रोडक्ट लेना है एंड देन यू कैन क्लीन इट अप। Okay, it's looking nice and beautiful. For powder blusher, she uses Forever 52 की powder blusher palette। अब ये वाली palette का ना दूसरा वेरिएंट आता है, लाइक ये वाला अब डिसकंटिन्यू हो गया है, बट दूसरा वेरिएंट भी इसके ही बहुत ज्यादा सिमिलर है और आई थिंक इट्स रीपैकेज्ड, आई एम नॉट टू श्योर। ये वाला यूज करती है और शी यूजेस रे ब्यूटी के ब्लशर और डियोर के ब्लशर।
बट उन्होंने ये वाला पैलेट बहुत बार रिकमेंड किया है एंड ये भी बोला है इफ यू हैव दिस पैलेट इन योर वैनिटी देन यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन एनी अदर पाउडर ब्लशर। एंड ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट अगर कोई पाउडर ब्लशर रिकमेंड कर रही है एंड वो बोल रही है अगर आपने बस ये रख लिया ना, उसके अलावा आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, देन इट सेज अ लॉट अबाउट दिस पैलेट। दिस पैलेट इज वेरी वर्सेटाइल बिकॉज इसमें सारे ही शेड्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अपने फेस पे ब्लश लगाने के लिए। प्लस इट कंटेन्स बोथ द मैट एज वेल एज द शिमरी ब्लशर। एंड ये वाले शेड्स आपको इसलिए अजीब लग रहे होंगे बिकॉज ये मेरी पैलेट टूट गई थी एंड आई हैव फिक्स्ड इट। ओके, तो आज हमें पिंक शेड ही लगाना है जैसे मॉडल ने लगा रखा था, तो मैं थोड़ा सा ही लेके डस्ट करूंगी। एंड मैम ना एप्पल्स तक नहीं लाती है, वो साइड ऑफ द फेस पे ही ब्लशर लगाती है, इससे ही लुक बहुत ज्यादा सटल लगता है एंड आपका फेस अपलिफ्टेड भी लगता है। डार्क डार्क करके लगाओ एंड साइड ऑफ योर चीक्स पे लगाओ। दूसरी साइड भी ये करना है। डस्ट जरूर कर लेना, दिस पैलेट इज हेल्प पिगमेंटेड। मैं बिल्कुल भी एप्पल ऑफ द चीक्स में नहीं ला रही हूँ, नोज में भी नहीं लगाऊंगी, चिन पे भी नहीं लगाऊंगी, चिन पे हल्का सा लगाऊंगी बस। आपको ब्लशर लगाते लगाते यहाँ तक अपने टेम्पल्स तक लेके जाना है ताकि हर चीज बहुत सीमलेस लगे, इवन लगे और आपका फेस अपलिफ्टेड लगे। बस। Brows are ultra defined in this makeup look, and for that I'll be using my Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade. This one is in the shade medium brown. गाइस, आपको ये प्रोडक्ट देखने में लगेगा कि इतना गीला गीला क्यों है। एक्चुअली मैंने इसमें ड्यूरालिन डाला था क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई अप हो गया था एंड ड्यूरालिन बहुत ही ज्यादा मैजिकल एंड वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। अगर आपको उसकी यूजेस जानने हैं देन यू कैन रेफर टू माय ओल्ड वीडियोस। मैं जनरली हर टॉपिक पे ही वीडियो बना चुकी हूँ। आपको ब्राउज कैसे डिफाइन करनी है, एक बार आपने अपना ब्रश टिप करा, देन अपने हाथ में या पैलेट में ना एक्सेस निकाल लेना। एकदम से लगाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड देन आपको नीचे से अपनी ब्राउज ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। ऊपर से भी सेम करना है, बट ऊपर से आपको सेंटर से जाना है, यहाँ से नहीं जाना है, सेंटर से जाना है। अच्छा, जब आप लोग अपना आईब्रो ब्रश लेते हो तो मेक श्योर कि उसमें स्पूली भी अटैच हो, क्योंकि आपको जब अपने ब्राउज फिल करते हो ना देन उनसे बार बार कोम भी करना होता है ताकि प्रोडक्ट आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर आप सिर्फ एक एंगुलर ब्रश ले लेते हो वो काम तो बहुत अच्छा करता है, बट फिर देन आपको एक सेपरेट स्पूली लेना होता है उसे कोम करने के लिए, क्योंकि आपकी आईब्रोज में ना कोम्बिंग भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, एक तो अपनी ब्राउ हेयर्स को डायरेक्शन देने के लिए प्लस टू इवनली स्प्रेड द प्रोडक्ट। पारुल मैम तो आई शैडो पैलेट से भी ब्राउज फिल कर देती हैं, बट हियर आई एम यूजिंग अ पोमेड फर्स्ट टू डिफाइन माई ब्राउज क्योंकि मुझे हेवी ब्राउज ही बनानी है, एंड देन आई यूज अ पाउडर ब्राउ प्रोडक्ट। Guys, it's time to powder fill my brows, and for that I'll be using Anastasia Beverly Hills Dark Brown Brow Powder Deo. This is how the product looks like. इससे एक बार सेट कर दूंगी तो मेरी ब्राउज बिल्कुल भी स्मच नहीं हो पाएंगी, प्लस बहुत ज्यादा फुलर भी लगेंगी। आपने हमेशा देखा होगा पारुल मैम के मेकअप लुक में ब्राउज बहुत अच्छे से डिफाइंड होती है। Nowadays people are more into feather brows और bushy brows, but I also like well defined brows. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इवन कभी कभी तो मैं ओवर भी कर लेती हूँ अपने ब्राउज को, बट क्लाइंट्स का मेकअप मैं हमेशा क्लाइंट्स के हिसाब से करती हूँ। इफ दे लाइक वेल डिफाइंड ब्राउज देन आई गो विद दैट, और इफ दे लाइक फेदर आउट ब्राउज तो मैं वो भी कर देती हूँ, व्हाटएवर द क्लाइंट फील्स लाइक। Okay, it's looking very defined, well structured. Let me complete my other brow as well and I'll be right back. Guys, brows are done. It's time to clean up the edges of the brows. For that, I'll be using a lighter shade of concealer, which is from the brand Too Faced only in the shade Spawn. And उसको भी थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड में लेके I'll clean the edges of my brows. It makes a world lot of a difference. And मैम भी ये टेक्निक करती है, तब भी brows इतनी ज्यादा well defined लगती हैं। बहुत लाइट लेयर लेके आपको एक हाइलाइटिंग कंसीलर के अपने ब्राउज के नीचे लगानी है, एंड देन जस्ट स्मज इट ऑफ।
ये वाली रूटीन एक बार आप किसी भी मेकअप पे अपने करके देखो, क्योंकि ब्राउज तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मेकअप लुक का। एंड जब भी आप ये वाला स्टेप करोगे ना, अपने ब्राउज की एजेस को क्लीन करना, देन आप बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखोगे अपने आई मेकअप में। लाइक सारे स्टेप्स ये अननेसेसरी लगते हैं, बट दी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मेक्स अ वर्ल्ड लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर मेकअप। ओके, ब्राउज आर डन नाउ। नाउ इट्स टाइम फॉर आई मेकअप। गाइस, आई मेकअप के लिए ना कोई भी मेकअप आर्टिस्ट एक पर्टिकुलर पैलेट को रेफर नहीं करता है। सो पारुल मैम ऑल्सो यूजेस वैरायटी ऑफ आई शैडो पैलेट्स रेंजिंग फ्रॉम Morphe, Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills, Pat McGrath, etc. 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 आज मैं अपना आई मेकअप करूंगी इन दो पैलेट से, जेम्स चार्ल्स एंड जैकलिन हिल पैलेट, बोथ फ्रॉम द ब्रांड Morphe। ये हर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में आपको मिलेगा, एक ये वाला पैलेट and दूसरा our James Charles makeup palette, and तीसरा is from the brand Corrector Cosmetics. It's their full contrast 18 color eyeshadow palette and this one is in the shade CFC 002 and उससे मैं ये वाला डीप मरून शेड पिक करूंगी, क्योंकि आप इस वाली मॉडल के फेस में देखो क्रीज बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड है। ऑफ कोर्स इट्स अ कट क्रीज मेकअप लुक एंड मैम ने कितना ज्यादा अच्छी तरीके से कलर्स के साथ खेला है, रेंजिंग फ्रॉम अ प्लम शेड, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लैक, मेटालिक ब्लू लाइनर, ओ माय गॉड, एंड ट्रांजिशन शेड में उन्होंने लाइट ब्राउन पीछे शेड लिया, बहुत सारे कलर्स के साथ खेला है एंड आई मेकअप लुक बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा प्रिटी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आई मेकअप से। फर्स्ट आई विल यूज अ पेंसिल ब्रश एंड डिप दिस ब्रश इन दिस प्लम शेड, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड मैं ना 3 पॉइंट्स ड्रॉ करूंगी। पहला सेंटर ऑफ माई आईलिड, यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करना है। गाइस, मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला शेड जा पाएगा मॉडल के लुक से। मैं हुडा ब्यूटी की पैलेट लेके आती हूँ, ये वाला हटाती हूँ एंड आई विल बी राइट बैक। तीन तीन पैलेट यूज करने के बाद भी ना सिमिलर शेड नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने निकाल ली अपनी हुडा ब्यूटी की मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आई शैडो पैलेट एंड आई विल बी यूजिंग दिस शेड। दिस शेड इज नोन एज वर्टेक्स and I'll apply this shade on my crease area. This one is a very dark purple, almost a brinjal color, and 3 shades. Yes, this is the perfect shade. आपको 3 पॉइंट्स बना के उन्हें कनेक्ट करना है। अगर थोड़ा इसमें अनटाइडी हो गया, जैसे मेरा भी अनटाइडी हो रहा है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा ब्लेंडिंग होगी, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी बिल्डअप होगा कि सब कुछ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। नाउ आई यूज अ ब्लेंडिंग ब्रश एंड मैं इसे ब्लेंड करूंगी बहुत अच्छे से एंड मैं अपनी क्रीज को ना बिल्डअप करूंगी। कट क्रीज करने के ना 2 फायदे होते हैं। आपकी आईज बहुत ज्यादा एक तो ब्यूटीफुल लगती है, विदाउट अ डाउट, यस, आईज बहुत ब्यूटीफुल लगती है, प्लस आपकी आईज ज्यादा ओपन अप एंड ज्यादा बड़ी भी लगती है, लाइक स्पेशली फॉर हुडेड आई गर्ल्स, लाइक आई ऑल्सो हैव हुडेड आईज। तो आप एक फेक क्रीज ड्रॉ करते हो, लाइक मेरी क्रीज अगर होगी, मेरी क्रीज यहाँ पे है जो हुड में छुप रही है, एंड कट क्रीज करने से ना आई हैव ड्रॉन अ फेक क्रीज, तो ऑटोमेटिकली मेरी आईज ओपन अप ही लगेंगी। मल्टीपल टाइम्स आपको कलर लेना है एंड देन ब्लेंडिंग करनी है। अगर आप स्टार्टिंग में 3 डॉट्स बना लेते हो ना, देन आपको एक आपका पॉइंट मिल जाता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक ही ब्लेंडिंग करनी है एंड कलर की प्लेसमेंट भी कहाँ तक करनी है, अदरवाइज ऐसे थोड़ा मेसी हो जाता है। तो 3 डॉट्स टेक्निक इज अ वेरी बिगनर फ्रेंडली टेक्निक एज वेल। इफ यू आर अ बिगनर, देन आपको ये वाली टेक्निक ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी लगेगी। गाइस, जितना हार्ड आपको लगता है ना एक लाइनर ड्रॉ करना, उतना हार्ड कट पीस आई मेकअप भी होता है। एक तो दोनों पीस बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए एंड प्लस जब आप उसको कंसीलर से कट करोगे ना, तो बिल्कुल सही एंगल पे कट होना चाहिए। कट क्रीज करना सेल्फ मेकअप में इज लिटिल डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू डूइंग ऑन क्लाइंट्स। क्लाइंट्स पे तो बहुत आराम से हो जाता है। ओके, नाउ आई बी टेकिंग दिस मरून शेड, दिस वन इज नोन एज हॉट मेस, एंड मैं अब सेम ही शेड लेके अपनी क्रीज पे लगाऊंगी।
जब आप कट क्रीज करते हो ना तो मेक श्योर टू यूज डार्कर शेड्स ऑफ आई शेडोज ओनली ऑन योर क्रीज एरिया, उससे ही आपकी क्रीज प्रोमिनेंट लगेगी। अगर आप बहुत लाइट ट्रांजिशन शेड्स ही लगा लोगे तो आपकी क्रीज इतनी प्रोमिनेंट नहीं लगेगी एंड दैट वुड डिक्लाइन ऑल द पर्पस ऑफ डूइंग अ कट क्रीज आई मेकअप। I'll go once again. And look at the motions, guys. मैं राउंड सर्कुलर मोशंस कर रही हूँ, विंडशील्ड वाइपर, राउंड सर्कुलर, विंडशील्ड वाइपर। यही दो मोशंस होते हैं आपके आई मेकअप में। इनकी तो आप मास्टरी ही कर लो, क्योंकि हर मेकअप में आपको यही दो मोशंस करने हैं, राउंड सर्कुलर, विंडशील्ड वाइपर, राउंड सर्कुलर, विंडशील्ड वाइपर। ओके, नाउ आई टेक दिस शेड विच इज नोन एज कार्मा एंड इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज करूंगी। आप लोग नोटिस करो कि मैंने अब थोड़ा सा बिगर ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। द लाइटर योर शेड्स, द बिगर योर blending brush would be, and the darker your shades, the smaller your blending brushes would be. आप देख सकते होंगे कि जो मैम ने ट्रांजिशन शेड लिया है वो बहुत ही प्यारा सा पीचिश ब्राउनिश शेड है एंड दिस वन परफेक्टली फिट्स इन इट। आई थिंक मैम ने ये वाला आई मेकअप लुक पूरा ब्यूटी की मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पैलेट से ही किया होगा, क्योंकि सारे शेड्स ही मुझे इसमें मिल गए। कहाँ मैं तीन तीन आई शेडो पैलेट्स आपको दिखा के इंटिमिडेट कर रही थी, आपको भी लग रहा होगा ओ माय गॉड हम कैसे करेंगे तीन तीन, क्योंकि सबके पास नहीं होते। मेकअप आर्टिस्ट के पास ही तो इतने सारे पैलेट्स मिलेंगे ना, एक नॉर्मल इंसान इतने सारे पैलेट्स क्यों लेगा? नॉर्मल इंसान एज एन एक नॉर्मल लड़की इतने सारे पैलेट्स क्यों लेगी अनटिल एंड अनलेस शी इज अ मेकअप एंथुसियास्ट। It's time to cut the crease. For that, you can use this cut crease brush. This one is from the brand Prosh. और you can use this flat brush. This one is from the brand Trilon. और अगर आपको सबसे easy करना है ना तो एक लाइनर ब्रश ले लो, इस टाइप का लाइनर ब्रश ले लो एंड देन थोड़ा सा कंसीलर अपनी क्रीज पे लगाओ, इससे बहुत नीटली लाइन ड्रॉ हो जाती है एंड देन उसे नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दो, बहुत अच्छे से कट क्रीज हो जाता है। आज मैं बिल्कुल लेमैन वाला कट क्रीज आपको करके दिखाती हूँ। क्रीज कट करने से पहले पारुल मैम ऑल्सो यूजेस माइसेलर वाटर एंड अ क्यू-टिप टू रिमूव एक्सेस मेकअप फ्रॉम दी आईलिड्स। इससे क्या होता है, क्रीजिंग नहीं होती। जितना ज्यादा मेकअप लगाते रहोगे, लाइक पहले कंसीलर की लेयर थी, देन पाउडर सेट किया था, देन इतने सारे आई शेडोज, उसके बाद कंसीलर, फिर आपके शिमर शेड्स एंड देन ग्लिटर्स एंड ऑल, उससे ना बहुत ज्यादा क्रीजिंग होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लेयर्स इंक्रीज हो रही है तो ऑफ कोर्स इट वुड क्रीज। तो पहले तो जस्ट क्लीन योर आईलिड्स विद अ माइसेलर वाटर, देन टेक एनी कंसीलर बट अ हाइलाइटिंग शेड। हियर आई एम यूजिंग द सेम टू फेस का कंसीलर, मैंने ले लिया अच्छे से ऑन द बैक ऑफ माई हैंड and I'll use a liner brush. Make sure you have a clean liner brush. उसमें बिल्कुल भी आपके लाइनर का रेसिड्यू ना हो, अदरवाइज पूरा आई मेकअप लुक आपका ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। एक बार आपने ऐसे लगा लिया, देन एक क्लीन कट क्रीज ब्रश ले लो और फ्लैट शेडर ब्रश ले लो, व्हाटएवर यू फील लाइक, एंड प्रोडक्ट को ना नीचे ड्रैग ड्रैग कर दो लाइक सो। गाइस ये लाइनर वाली टेक्निक से इतना आसानी से कट क्रीज हो गया, बस आपको लाइनर से लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन एक फ्लैट ब्रश से उसे नीचे की तरफ स्मच कर देना है एंड देख सकते हो कितना नीट एंड प्रिसाइज कट क्रीज हुआ है। लेट मी डू द सेम ऑन माय अदर आई एज वेल एंड आई विल बी राइट बैक। Guys, you can see how perfect my cut crease is looking, and now we'll be using a dark blue shade and I'm taking this dark blue shade from Morphe X James Charles palette. लेके dust off the excess and just apply it on the outer corners. पहले आपको डिपॉजिट करना है कलर को। डिपॉजिटिंग द कलर इज just taking it and dabbing it. This is called as depositing the color. बस आपको ये अपने आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्लू शेड लगाना है। The same I'll do on my other eye as well.
एंड थोड़ा सा ना ऐसा स्लांट तरीके से लगाना है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट एज में नहीं लगा देना है. You have to apply it little diagonally. Now we'll be applying a little bit of black color as well. Picking this black color from Morphe X James Charles palette only. Black, blue का मैं what do we call it? दोनों को mix करके ले रही हूँ. Black, blue, and then we'll be intensifying our outer corners. Okay, I think we are done. Now we'll be applying a icy blue shade on the center part of our eyelid. For that, we'll be picking a cool toned icy blue shade. Now I'll be picking this cool toned icy blue shade and I'll be applying it on the center part of my eyelid, just here. And जो आपने crease line draw करी है ना, उससे आपको 1 मिलीमीटर नीचे ही रखना है ताकि आपकी crease दिख सके. You can use a brush as well to be precise. Brush ले लो and then just apply it. Okay, this one is a very beautiful shade. Go over again with your dark blue as well as your black shade on your outer corners. Join it with the crease and then just apply the icy blue shade. Okay. Guys, our mind is so Instagram nowadays. Like, जब भी मैं ओके बोलती हूँ ना, मेरे दिमाग में दानिया गरी चल रहा होता है. कमेंट कि अगर आप लोग भी ऐसे रिलेट कर पा रहे हो या आपके दिमाग में कौन सा गाना चलता रहता है. नॉट दैट कि आई एम अ फैन ऑफ दिस टोन, बट जब भी मैं ओके बोलती हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मुझे स्ट्राइक होता है दानिया गर. गाइज, दिस वन इज लुकिंग टू मच सिल्वरी. लाइक इसको थोड़ा सा मैम के कलर से मैच करते हैं. आई थिंक आई शुड यूज लिटिल बिट ऑफ दिस वन एज वेल, बट वेरी स्पेयरिंगली. मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी, ज्यादा नहीं. Yes, I'll use it sparingly only. I think now it's kind of matching. Guys, मैं थोड़ा सा ये वाला शेड भी अपनी फिंगर से ही टैप कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलर और सिमिलर मिले. आई एम ट्राइंग टू बी एज क्लोज एज पारू मैम्स आई मेकअप ताकि बिल्कुल टू टू ही दिखा पाऊँ मैं आपको. I think it's even now. Now we'll be using this bone white shade from the same James Charles palette and we'll be applying it on the inner part of our eyelid. इससे ना आईज बिल्कुल एकदम से ओपन अप हो जाती हैं. And to make it shimmery, I'll be using this shade known as Beam from Morphe X Jaclyn Hill palette. बहुत माइल्ड सा शिमर ऐड होगा. फिर सेम कलर से अपने आउटर कॉर्नर और इंटेंसिफाई कर लेते हैं. Now we'll be using a metallic blue liner and I'm very sure Parul ma'am ने अपने ही ब्रांड का metallic blue liner यूज करा होगा. Parul ma'am, if you don't know already, उनकी मेकअप लाइन भी आती है which consists of liners, kajal, lipstick, lip glosses, blush, face scrub, and a little bit more products. But I don't have metallic liner in shade blue from Parul Garg Cosmetics. Hence, I'll be using the code metallic blue liner. This one is actually good. ये बहुत अच्छा metallic liquid liner है and we'll be applying it only how perfectly it's matching. And its applicator is also quite precise to draw the wing. कुछ ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाना है. ओके, विंग भी मैम ने छोटा सा लगाया था तो मैं भी छोटा ही लगाऊंगी.
You can see how beautiful it's looking. Let me apply the same on my other eye and be right back. Guys, my liner is done. Look बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा क्या, अभी काफी ज्यादा इनकम्प्लीट है. अभी तो हम इसे पॉलिश और करेंगे, बट काफी ज्यादा क्लोज लग रहा है ना मैम के मेकअप लुक से. अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक पैलेट में सेम कंसीलर ले लिया, टू फेस का इन द शेड स्वान, एंड मैं अपने ब्राउ बोन को क्लीन करूंगी. एंड हाउ डू यू क्लीन इट? वो थोड़ा सा कंसीलर लेके just apply it on your brow bone, smudge it off, and here we'll be applying an highlighting shade. ये सब ना nicks and knacks है मेकअप के, which nobody tells you in makeup, but I do. आपने देखा होगा YouTube में, you must have seen thousands of videos, and मुझे कमेंट करके बता देना कि किसने आपको ये हैक सिखाए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें कोई इतनी बारीकी से चीजें बता रहा हूँ. But I love you guys, so I don't gatekeep any of my secrets. And हम ना इसके नीचे से भी क्लीन करेंगे ऐसे, and then just smudge it downwards. Use the tip of your beauty blender. बहुत हल्के हाथों से करना है so that आपका नीचे का बेस मूव ना हो जाए. Okay, you can see the difference, this eye versus this eye. Okay, now just powder set it, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंसीलर प्रोडक्ट एक लिक्विड प्रोडक्ट ही है, सो यू हैव टू पाउडर सेट इट. मैंने बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पाउडर नहीं लिया है, जो था उसे बस डैब डैब करके इसे सेट कर दिया है. बिफोर डूइंग आवर लोअर लैश लाइन, आई विल बी फिक्सिंग माय फेस with this MAC Studio Fix Compact Powder. This तो every makeup artist use, even Parul ma'am also uses this compact powder. ये सभी का favorite है, and if there's one makeup product which every makeup artist swears by, then this is the one. अच्छा, every makeup artist swears by two makeup products जो मैंने इस वीडियो में भी दिखाया है. एक तो एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइजर, एंड द नेक्स्ट इज दिस मैक का फिक्स प्लस कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि एक पे बहुत अच्छी कवरेज देता है, प्लस इतने अच्छे से आपके मेकअप को सेट कर देता है. एंड अगर थोड़ी बहुत क्रीजेस भी आ रही होती है, इधर उधर से कहीं मेकअप हट भी रहा होता है ना, तो ये सबको संभाल लेता है. इट इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट. ये ना मेकअप का दादा है. घर में दादाजी होते हैं ना, जो सबको संभाल लेते हैं. दिस इज द दादा ऑफ मेकअप. दादाजी. ये मेरी ही टर्मिनोलॉजी है, एंड आई होप आप सब एंजॉय भी करते होंगे मेरी टर्मिनोलॉजी को. For highlighting my brow bone as well as for my face, I'll be using this highlighting palette from Huda Beauty. This one is an old purchase, and now this palette is not available. It's discontinued. अब different palette आती है plastic packaging में, but it's still going strong, so I use it for my personal self. I don't use it on my clients, but for me it's going pretty fine. तो एक छोटा सा pencil brush लेंगे, and I'll be picking this golden shade. I'll be applying it on my brow bone. सबसे ज़्यादा हाईलाइट इस एरिया में लगाते हैं, and then you have to drag it all the way to the starting point of your brows. Okay, I'll be mixing these two shades, and then I'll be applying it here and on the inner part of my eyelids. आपने देखा कि मैंने हाइलाइटर शेड अपनी 1/3 पार्ट ऑफ लोअर लैश लाइन में लगाया है. नाउ फॉर द 2/3 पार्ट ऑफ माय लोअर लैश लाइन, आई विल बी यूजिंग अ डार्क ब्राउन शेड. फॉर दैट आई विल बी पिकिंग दिस शेड फ्रॉम Morphe X James Charles palette. वैसे आपको लग रहा होगा तुमने लुक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया. You have shown us multiple palettes, but every makeup artist functions like that. एंड ये पारुल गर्ग मैम का मेकअप रिक्रिएशन है. एंड आपने देखा भी होगा, कभी कभी आप रील्स में भी देखते होंगे, स्टोरीज में भी देखते होंगे, जब भी मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते हैं ना, तो उनके स्टेशन में मल्टीपल पैलेट्स खुले हुए होते हैं, एंड देन दे पिक एंड चूज दी शेड्स एज दे फील लाइक. तो यार मुझे भी अगर सेम लुक ही दिखाना है तो आई हैव टू यूज डिफरेंट पैलेट्स ना. अगर आपको लग रहा है कि टू मच हो गया, देन जस्ट इग्नोर इट. गाइस, अगर आप क्लोजली मॉडल की पिक्चर देखोगे ना, तो इनका टीयर डक्ट एरिया में अच्छे से काजल लगा हुआ है. आई विल बी डूइंग द सेम. मैं इंग्लॉट का AMC 77 ही काजल ले रही हूँ. दिस वन इज अ पॉट काजल. आई विल बी टेकिंग अ लाइनर ब्रश, एनी रैंडम लाइनर ब्रश हियर आई एम टेकिंग, एंड मैं बस अपने टीयर डक्ट एरिया में ही लगाऊंगी. As you can see, it makes difference. Like इतनी छोटी छोटी चीजें शायद एक लेमैन नोटिस भी ना कर पाए, बट मेकअप आर्टिस्ट तो 100% नोटिस करेंगे. आप देख सकते हो डिफरेंस दिख रहा होगा. Now for the nude kajal, I'll be using Inglot ka gel kajal only, but it's in the shade number 68, and I'll use it as my nude kajal today. Let's take a different liner brush. जिससे black लगाया उससे मत लगाना, सब कुछ black हो जाएगा. Black is a very pigmented shade,
एंड उसके ऊपर कोई भी शेड लगाने से उसी बहुत पतला पतला काजल लगाना है हमें. You can use a nude kajal pencil as well. Okay, eyes are almost done. Just the mascara and lashes are pending. For mascara, I'll be using my trusty Fenty Beauty mascara. Ma'am uses L'Oreal, Maybelline, Clinique, Color Bar. These are some of the mascaras which ma'am uses, and सबके mascara अच्छे हैं. It's just that कि I have Fenty Beauty का mascara and it's going to expire soon, तो मैं पूरे पैसे वसूल रही हूँ उसके because I'm a बनिया. And not that कि बनिया ही पैसे वसूलते हैं. अगर आप किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करोगे then उसके अगर आप पूरा मज़े नहीं उठाओगे then किस बात के पैसे इन्वेस्ट करें? Don't you agree? Okay, let me apply the mascara on my lower lashes as well. Guys, for my lower lashes, I would be using Ferrero Rocher mascara. Guys, for lashes today, I would be using Sinora lashes. It's in the shade of Variant Lush. It's discontinued now. अब इनका name change हो गया है. I'm not too sure about their new name. These are the exact lashes जो बहुत ज़्यादा close हैं जो मैम ने use कर रखा है अपने makeup look में. So today I'll be applying these lashes only. Let me apply my lashes and be right back. गाइज आई एम डन विद माई लैशेस. अब लाइनर को एक बार रीटच भी करना है. ये मेकअप आर्टिस्ट्री में ज़रूर होता है. मेकअप आर्टिस्ट्री क्या, जब भी आप प्रोफेशनल मेकअप करते हो ना, लैशेस लगाने के बाद लाइनर ज़रूर से रीटच करते हैं ताकि एक तो उसका बैंड ना दिखे एंड सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल दिखे. तो आप भी कर लिया करो अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप बिल्कुल प्रोफेशनल लगे. गाइस कमेंट करके बताओ मेकअप लुक बिल्कुल सेम लग रहा है या नहीं लग रहा है. टू सेट माई फेस आई विल बी यूजिंग शार्लेट टिलबरी सेटिंग स्प्रे. गाइस हाइलाइटिंग एक कमाल की ट्रिक बताती हूँ. जब आप अपने फेस पे हाइलाइटर लगाने वाले हो, सो आफ्टर सेटिंग स्प्रे मेक श्योर योर फेस इज ओनली 80% ड्राई एंड देन यूज अ हाइलाइटर. जब वो 20% वेट वाला फेस होता है ना, उसमें हाइलाइटर और भी ज्यादा ब्लाइंडिंग लगता है. एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग माई डियोर का हाइलाइटिंग पैलेट एंड आई विल बी यूजिंग दिस गोल्डन शेड ओनली टू हाईलाइट माई फेस. एंड हाईलाइटिंग बहुत सटल करेंगे, बिल्कुल भी ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मैम के मेकअप लुक में भी देखा होगा बहुत कम कम ही हाईलाइटर है. ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा हाईलाइटर नहीं है बट हाईलाइटर है. एंड आप देख सकते होंगे कि मेरा ब्लश भी अब कितना ज़्यादा सटल लग रहा है. मैंने बोला था ना कि मेकअप विद टाइम थोड़ा फेड ऑफ हो जाता है. एंड थोड़ा थोड़ा सा बस फोरहेड की हाइलाइटिंग भी करेंगे. मैं इतने हल्के हल्के हाथों से हाइलाइटर लगा रही हूँ कि बिल्कुल भी ओवर ना हो जाए बट एट द सेम टाइम एक शिमर इफेक्ट भी मिल जाए. एंड बस थोड़ा सा नोज पे. यस एंड दिस. नोज का हाइलाइटर अगर आपको सटल दिखाना हो ना, तो एक बारी पिज्जा पफ का जो आपका बिल्कुल क्लीन वाली साइड है उससे थोड़ा सा ऐसे डैब डैब भी कर दो अपने हाइलाइटर के ऊपर, तो एक्सेस बिल्कुल हट जाएगा एंड आपकी नोज ओवर शाइनी एंड ओवर ऑयली नहीं लगेगी. Okay, guys, it's time for lip liner. For that, I'll be using K Beauty lip liner. It's in the shade Fame, Fame, Fame. And अगर आप कोई भी कलर की लिपस्टिक लगा रहे हो, मेक श्योर टू यूज अ गुड ब्राउन कलर लिप लाइनर. ऐसा नहीं है कि अगर आप पिंक लगा रहे हो तो आप ब्राउन लिप लाइनर नहीं लगाओगे. ब्राउन लिप लाइनर से दो चीजें होती हैं. एक तो आपके लिप्स बहुत अच्छे से कॉन्टोर हो जाते हैं, प्लस एक डेफिनेशन मिल जाती है. गाइस के ब्यूटी के सारे ही प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं दैट यू कैन यूज देम इन योर प्रोफेशनल मेकअप. उन्होंने एक न्यू लॉन्च किया है के ब्यूटी कुशन मैट फाउंडेशन. आई हैव मेड अ फुल फ्लेश वीडियो अबाउट दिस फाउंडेशन. इट्स एन एक्सेलेंट फाउंडेशन. आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इस वीडियो के बाद उसे भी चेक कर लेना क्योंकि वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है एंड इट्स माई ऑनेस्ट रिव्यू ओनली. मैंने हर टाइप का टेस्ट किया है उसमें, वाटर टेस्ट, ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट, वियर टेस्ट. तो इट्स अ वेरी यूजफुल वीडियो. गाइज इफ यू ट्रस्ट माई रिकमेंडेशन एंड अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चाहते हो देन यू कैन चेक माई नाइका रिकमेंडेशन वीडियो. Guys, for lipstick, I have ordered this 10 lip shade from Parul Garg Beauty क्योंकि I know जो मैम ने मॉडल पे लिपस्टिक लगाई है इसमें जरूर होगी एंड इट्स एन एक्सेलेंट लिप शेड. इसमें आपको 10 कलर मिल जाते हैं दैट टू फ्रॉम पारुल गर्ग ब्यूटी एंड इट्स क्वाइट रीजनेबल एज वेल. मैं इसकी फुल फ्लैश रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगी. अगर आप भी देखना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं जल्दी से बना दूंगी. पैकेजिंग इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी एथनिक वाइब्स आती हैं इसमें. फ्लावर्स, लीव्स, ग्रीन कलर की पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है. शेड्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. यू गेट योर न्यूड्स, ब्राउन्स, पिंक, रेड, एवरीथिंग. मैम ने जो मॉडल पे यूज करी है दैट इज चेरी ब्लॉसम शेड. कि चेरी ब्लॉसम कौन सा होगा? आई थिंक दिस वन इट इज. इनमें से ही होना चाहिए. ओके, दिस वन इज एलन चार्म.
स्वॉन्ग गाइस, बहुत बड़ी बीटी हो गई है। मुझे लगा स्लिप सेट में चेरी ब्लॉसम शेड की लिपस्टिक होगी। मैंने कलर्स के नाम चेक नहीं करे थे। दैट इज द मिस्टेक ऑन माई पार्ट, बट एनीवेज आज जो भी लिपस्टिक है ना, इनसे ही काम चलाएंगे। तो हमें अगर लिपस्टिक की मैच करनी है, फर्स्ट आई विल यूज दिस शेड। दिस वन इज नोन एज फ्लेयर। फ्लेयर के ऊपर हम एक दो लिप शेड और लगा देंगे, तो विल गेट द एग्जैक्ट शेड एज व्हाट पारुल मैम हैज यूज्ड ऑन द मॉडल। ये वाला शेड भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, डोंट यू अग्री? बट हम थोड़ा सा मिक्स एंड मैच तो करेंगे, क्योंकि हमें मॉडल के लिप शेड से क्लोज लिप शेड ही अप्लाई करना है। तो उसके लिए आई विल बी टॉपिंग इट अप विद दिस लिप शेड विच इज नोन एज एलन। आई होप कि कलर मिल जाएगा हमें परफेक्ट। ओके, आई थिंक वी गॉट अ कलर। गाइस, थोड़ा सा ऐसे मॉफ टोन में लेके जाना है। अब मैं एक और शेड को टॉप अप कर रही हूँ। इट्स इन द शेड वाइब। गाइस, इसमें ना थोड़ा सा कंसीलर लगाएंगे, क्योंकि हमें ना थोड़ा सा लाइट मॉविश टोन में शेड चाहिए। I think we are getting it. Yep, we got it. Guys, we got it. Yay, I'm super happy. Let me quickly change and be right back. Guys, I'm back and here's my finished look. बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो मैम जैसा मेकअप लुक लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैंने इनफैक्ट सेम एसेसरीज भी पहनी है, काफी हद तक सेम है, ड्रेस भी काफी हद तक मैंने मैच करने की कोशिश करी है। कमेंट करके बताओ कैसे लगा ये वाला मेकअप लुक, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्ट सिमिलर लग रहा है। लाइक 19-20 भी नहीं, पूरा 20 से 20 वाला सिमिलरिटी लग रही है मुझे। इफ यू लाइक दिस मेकअप लुक देन पता है ना, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000। आपको वो जल्दी से करना है ताकि मैं थर्ड वीडियो बिल्कुल आपके पसंद की लेके आऊं। देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल गौरी स्टाइल्स। हिट दैट बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम मैं पोस्ट अ न्यू वीडियो। मेरा भी लग रहा है ना माही वे जैसा मेकअप लुक। तेरी बातें झूमर चमके, तेरे कहनों बायल चमके, है वे माही वे। मेरा भी लग रहा है ना माही वे वाला लुक। इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। लाइक यार, इस टाइम पे इतना सुंदर मेकअप लुक करके ना लग रहा है कहीं चले जाओ, कहीं किसी की संगीत पार्टी में डांस कर दो। लाइक लगता है यार, जब आप बहुत अच्छे से रेडी होते हैं आपको लगता है कि यार हमारे को कहीं जाने की ये इवेंट होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस जाके अपना मूड हो रहा है। आप लोग बताओ कि आपको ये वाला मेकअप लुक कैसा लग रहा है? लाइक का टारगेट जानते हो ना कितना है? इस वक्त 1000 लाइक्स हैं, आप लोग को पहुंचाना है। आपने पिछली बार मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया कि मैंने बिल्कुल एक दिन की भी देरी नहीं करी। जैसे ही 500 लाइक्स का टारगेट हिट हुआ, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे इसमें 1000 लाइक्स का टारगेट हिट होगा, मैं तीसरी वीडियो भी आपके डिमांडेड लेके आ जाऊंगी। मैंने इस वीडियो में इतने सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, जो छोटी छोटी न्यूएंसेस होती है ना मेकअप की, जो सब लोग नहीं बताने में कंफर्टेबल होते हैं, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल शेयरिंग देयर नॉलेज, बट आई एम अनलाइक देम। मैं हर चीज आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे इतना प्यार दिखा रहे हो then you also deserve to know everything. So here's my finished look. Enjoy some beauty shots. Till then, bye bye, take care, God bless you all.